Good evening, students. Welcome to the session. In this session, I am going to discuss some questions with you that are based on the Newton's second law of motion. So, before proceeding to this video, earlier two videos are uploaded on the basis of Newton's second law. If you have not seen that videos, then you can go to the earlier videos and watch them so that you can get the concept of this video. So, without wasting any time, let's move to question number 1, that is on screen. So question number 1 is on screen and the question is three blocks of masses m1 equal to 1 kg, m2 equal to 2 kg and m3 equal to 3 kg are connected by massless string. So these strings are dismiss please. Just wait for 1 second, students. So these strings are this string as well as this string, these are massless, means इनका कोई खुद का मास एग्जिस्ट नहीं कर रहा. That means this string as well as this string as well as this string, these are massless strings. After that, see what is he saying. Massless string and placed on the horizontal frictionless surface. So this is the surface, but this surface is frictionless. That means इसकी friction क्या है, फिर भी friction नहीं है. That means this does not oppose the motion. ब्लॉक्स के ऊपर फोर्स लगाएंगे, कोई भी फ्रिक्शन की फोर्स नहीं लगेगी. तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा दैट द सर्फेसिस आर फ्रिक्शनलेस. कहीं पे फ्रिक्शन वाले सरफेस आएंगे वहाँ पे कुछ कहानी और होगी. बट अप टू दिस लेक्चर, इस लेक्चर में हम क्लास करेंगे सिर्फ फ्रिक्शनलेस सरफेसेस की, एज शोन इन फिगर 3.69. तो फिगर का नाम है, ठीक है. अ फोर्स F इज इक्वल टू 12 न्यूटन. A force F equal to 12 Newton. So where is F? This is the F. So force of 12 Newton is applied to mass m1. This is the mass m1. So as shown, the acceleration of the system. So what he is asking? He is asking about the acceleration of the system. So look at the diagram clearly. Firstly, okay, diagram में यहाँ पे बच्चे वेट लिख लें, थोड़ा सा इनका मास क्या था, सो दैट हमें थोड़ा क्लियर रहे मास. m1 इज मास 1 kg. ओके, थोड़ा पेंसिल प्लीज चेंज द पेंसिल साइज. ओके ओके, सो दिस इज 1 kg, m2 इक्वल टू 2 kg and m3 इक्वल टू 3 kg. सो दिस इज द मास and force equal to 12 Newton. बिकॉज आई हैव टू सॉल्व दिस ऑन ब्लैकबोर्ड के ऊपर ज़्यादा अच्छे से विजिबल रहती है कलर्स. सो दिस इज 12 न्यूटन. सो नाउ आई हैव टू टेक यू टू ब्लैकबोर्ड. थोड़ा नीचे चलते हैं बच्चे क्वेश्चन के. ओके, नाउ आई विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर दीज थ्री ब्लॉक्स. फ्री बॉडी डायग्राम फॉर मास m1. फ्री बॉडी डायग्राम फॉर मास m1. बच्चे ऊपर की तरफ लगेगी नॉर्मल रिएक्शन, अभी आपको उसके बारे में नहीं पता. नीचे की तरफ लगेगा मास वेट mg एंड नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल हो जाएंगे, तो इनके बारे में अभी आपको ज़रूरत नहीं है. व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस फोर्स इज ऑन दिस साइड, फोर्स इज 12 न्यूटन. तो 12 न्यूटन इज द फोर्स दैट इज ऑन द टूवर्ड्स राइट साइड. तो 12 न्यूटन राइट साइड पे एंड लेफ्ट साइड पे क्या होगा स्टूडेंट्स, टेंशन T2 इज द दिस वन टेंशन ना. सो T2 विल बी द टेंशन. so T2 on this side. so T2, I am drawing the free body diagram of mass m1. so m1 का फ्री बॉडी डायग्राम है ये. दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1. तो बच्चे इसमें देखो बॉडी मूव किस तरफ कर रही है. नाउ बॉडी इज मूविंग इन राइट डायरेक्शन. दैट मीन्स 12 न्यूटन इज मोर देन T2. 12 न्यूटन इज मोर देन T2. तो फ्रॉम दिस free body diagram I got the equation that is
12 Newton because 12 is greater, so 12 minus T2, 12 minus T2, this is the net force now. 12 minus T2 is the net force, and net force is equal to mass into acceleration. Mass is 1, so this is equal to 1a. So this is the first equation I got from free body diagram of mass m1. Now I am going to draw the free body diagram of mass m2. Free body diagram of mass m2. So now I am going to draw that one. Control Y, back. Free body diagram of mass 2 m2. तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं मास m2 फ्री बॉडी डायग्राम. दिस इज द मास. एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ वेट, दीज विल कैंसिल ईच अदर. तो इनका तो अभी इतना रूल नहीं है, जब होगा तब देखेंगे. अगली नेक्स्ट वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे. देन सी दिस वन नाउ. बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड हेयर द टेंशन विल बी T3. तो T3 टेंशन विल बी देयर. T3 होगा ना लेफ्ट साइड पे. So T3 will be towards the left, T3, and T2 will be towards the right. So T2 will be towards the right and T3 will be left towards the left. Now in which direction body is moving? M2 is also moving in towards the right direction. M2 is also moving towards the right direction. That means which force will be greater? T2 will be greater than T3. तो यहाँ पे आएगा T2. The second equation that I got from the mass free body diagram of M2. So this is the free body diagram of M2, and the equation that I got from this free body diagram is T2, because T2 is body is moving towards right, so T2 is greater. T2 minus T3, T2 minus T3 equal to how much a? 2a. मास इंटू एक्सेलरेशन. सो बच्चे जब ये थ्री मासेस को हम फर्स्ट मास को पुल करेंगे विद द फोर्स 12 न्यूटन, तो फोर्स सेम रहेगी, मीन्स एक्सेलरेशन सेम रहेगा. एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा हर ब्लॉक का. था टेंशन अलग हो सकता है लेकिन एक्सेलरेशन सभी का सेम होगा. सो वी हैव टू कंसिडर देम एज अ सिस्टम ऑफ ब्लॉक. नाउ थर्ड फ्री बॉडी डायग्राम. From the third free body diagram, this is the third mass m3. Let's suppose free body diagram, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, वेट दैट इज mg. तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तो बॉडी विल नाइदर मूव अपवर्ड नॉर विल मूव, इट विल मूव डाउनवर्ड. तो बट राइट साइड पे टेंशन है दैट इज T3. ऑन द लेफ्ट साइड कुछ नहीं है. सो राइट साइड टेंशन इज T3. दैट मीन्स net force is equal to T3. So T3 is equal to 3a. Now I have three equations. This is equation number 1, this is equation number 2. Let's suppose this is 3. Add these three. On the left hand side I will got 12. T2 and T3 will cancel out, so 12 equal to 6a. 12 equal to 6a. So acceleration comes out to be 2 meter per second square for this question. 2 meter per second square. Students, now suppose we have to find the tension T2. So we have to find the tension T2. तो T2 फाइंड आउट करना है. तो 12 माइनस T2 इक्वल टू 1a. ए की वैल्यू 2 पुट कर दो, T2 आपके पास आ जाएगा 10. तो यहाँ पे आई एम सेइंग हेयर. ओके, अभी तक यहाँ पे नोट कर लो. अप टू दिस पॉइंट यू कैन नोट डाउन. ओके, सो एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी, दिस एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो जिनको समझ आ गया दे कैन नोट डाउन अप टू दिस पॉइंट, वो नोट कर लें. नाउ फ्रॉम दिस वन हमें यहाँ के फ्री बॉडी डायग्राम से क्या मिला था? 12 माइनस T2, बिकॉज 12 इज ग्रेटर. सो 12 माइनस T2 इज इक्वल टू 1a.
net force is equal to mass into acceleration. So acceleration is equal to 12, acceleration is equal to 2, so 12 minus T2 equal to 1 into 2. So T2 is equal to 12 minus 2. 12 minus 2 दैट इज इक्वल टू 10. तो T2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 10. बच्चे जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा टेंशन होगा, तो अभी देखेंगे, अभी आपको पता लगेगा धीरे धीरे. सो दिस इज T2 इज इक्वल टू 10. देन इन द अदर इक्वेशन वी हैव सीन T2 clear. From this mass we have seen, from the mass 2 kg we have seen कि T2 माइनस, ओके चलो यहीं से ले लेते हैं. फ्रॉम द थर्ड वन T3 इक्वल टू 3a. T3 was equal to T3 equal to 3 into A. So this tension T3 is equal to 3 into 2, that is 6 Newton. So 6 Newton will be the answer for this one. 6 Newton is the answer for T3. So T3 हमारा आएगा 6 Newton and T2 comes out to be 10 Newton and acceleration comes out to be 2 meter per second square. So this is all about the first question. So this is all about the first question. We have solved it with complete explanation I have given, and the final answer for this question was acceleration for the system was 2 meter per second square. So this option number D is the right answer for this question. Now moving to the second one. Okay, now he is asking about the tension T root T2. So now he is asking about in the question number 66 what is tension T2. So we have calculated the T2. If we go upward, एक बार दोबारा से देख लेते हैं जिनको प्रॉब्लम आई है. So let's move again to the upward, the earlier question. हाँ, तो यहाँ पे चेक कर लें एक बार. We have to find the T2 ना. So F, okay, this 12 minus T2 is equal to mass into acceleration, that is equal to 1a. So a की वैल्यू कितनी आई थी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. So T2 comes out to be 12 minus 2. So T2 comes out to be 10 Newton. So for the second question, if we have to find the T2, that is the tension between mass M1 and M2, your answer will be 10 Newton. So move to the question number 2, your answer will be 10 Newton. So option number B will be the right answer for this second question. Option number B. So now we have to move to the question number 3. So question number 3 is on screen. ओके, सो इस क्वेश्चन में बच्चे यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगेगी. नॉर्मल फोर्स कब लगती है? नॉर्मल रिएक्शन दैट इज ड्यू व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट, जब दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में हो. ठीक है, व्हेन द टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट देन एक नॉर्मल फोर्स लगती है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन. तो यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ऊपर की तरफ, बिकॉज दिस बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद दिस सरफेस. दिस बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद दिस सरफेस. तो नॉर्मल रिएक्शन के बारे में भी बात करेंगे, बट इस क्वेश्चन में क्या है वो देखना है हमें. 2 blocks of masses 5 kg and 3 kg are placed in contact with the horizontal frictionless surface. A force of 4 Newton is applied
फॉर मास 5 kg, ओके 3 kg, एक्सेलरेशन ऑफ मास 3 kg विल बी। सोचे एक्सेलरेशन तो दोनों का सेम ही होगा। पहली चीज़ याद रखना, जब भी ब्लॉक्स आएंगे एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई ब्लॉक जल्दी से भागेगा और कोई स्लो भागेगा। ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा, एक्सेलरेशन विल नॉट बी चेंज। तो एक्सेलरेशन तो सेम होगा ब्लॉक्स का हमेशा। थोड़ा सा डायग्राम डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट कुछ देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द नॉर्मल रिएक्शन। थोड़ा सा अभी नीचे चले जाएं क्योंकि सब कुछ गिवन है। तो नाउ मूव टू द, थोड़ा सा नीचे चलते हैं फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को। ओके यहाँ तक ठीक है। ओके यहाँ तक ठीक है बच्चे। व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल रिएक्शन? एक बार छोटा सा मैं आपको हिंट बता दूं। दिस सरफेस विल एक्सर्ट नॉर्मल रिएक्शन ऑन इट। एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ऊपर की तरफ, और ये जो बॉडी है दिस विल एक्सर्ट वेट। तो ये वेट लगाएगा mg ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ सॉरी, और नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ऊपर की तरफ। तो नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट बेसिकली हर क्वेश्चन में कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आई एम सेइंग अगेन, ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट कैंसिल हो जाएं, बट काफ़ी केसेस में हो जाते हैं बिकॉज दिस बॉडी इज़ नॉट मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो बॉडी ऊपर नीचे तो जा नहीं रही। बॉडी कहाँ पे जा रही है? बॉडी इज जस्ट मूविंग टूवर्ड्स राइट साइड। तो बॉडी इज जस्ट मूविंग टूवर्ड्स राइट साइड। दैट मीन्स हमें नॉर्मल रिएक्शन जो ऊपर की तरफ लग रही है वो नहीं लेनी है इस क्वेश्चन में। वी हैव टू टेक डिफरेंट नॉर्मल रिएक्शन। मैं अभी बताऊंगा आपको उसके बारे में। दिस इज द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। सो फ्रॉम हेयर यू हैव टू टेक द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन इन दिस डायरेक्शन विल बी n। तो इस डायरेक्शन में भी n लगेगी एंड इस डायरेक्शन में भी n लगेगी। सो दिस विल बी द नॉर्मल रिएक्शन। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। तो देखो 5 kg के ऊपर कितनी फोर्सेज लग रही हैं बच्चे। 5 kg का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, इफ़ आई हैव टू ड्रॉ द 5 kg फ्री बॉडी डायग्राम, तो ध्यान से देखो, एक तो फोर्स लग रही है दैट इज टूवर्ड्स राइट 4 न्यूटन, 4 न्यूटन टूवर्ड्स राइट, एंड टूवर्ड्स लेफ्ट भी तो लग रही है दैट इज द फोर्स दैट इज फ्रॉम 3 kg टू ऑन एन। 3 kg की बॉडी 5 kg के ऊपर लगा रही है, दैट इज कॉल्ड, हम इसको n लेते हैं। बट यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी तो हम इसको ले लेते हैं, चलो मैं 4n को 4 लिख लेता हूँ, ठीक है। ओके वेट करना 1 मिनट। तो इसको मैंने लिखा 4 एंड ऑन द लेफ्ट साइड मैंने लिखा n। ओके सो 4 एंड n इज नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस मास इज 5 kg। सो ये मास कितने का था? 5 kg का। इसका फ्री बॉडी डायग्राम। नाउ आई हैव टू राइट द इक्वेशन फ्रॉम दिस फ्री बॉडी डायग्राम। तो इससे कोई इक्वेशन भी मिलेगी भाई, उसको भी तो लिखना है। तो चलो जल्दी से उस इक्वेशन को लिखते हैं। दैट इक्वेशन विल बी बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स विच डायरेक्शन, बॉडी राइट साइड जा रही है, सो दैट मीन्स 4 इज ग्रेटर देन n। सो 4 माइनस n। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपने ध्यान रखना है कौन सी बॉडी किस तरफ जा रही है। सो 4 माइनस n इज नेट फोर्स, 4 माइनस n इज द नेट फोर्स। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इज 5, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम a। So this is the equation that I got from 5 kg free body diagram. Now I have to write the second free body. Now I have to draw the second free body diagram. 3 kg body. Force किस तरफ लग रही है 3 kg के ऊपर? 3 kg has only one force in this direction. That is called n. बच्चे देखो फोर्स जो 4 न्यूटन है, 4 न्यूटन इज एक्सर्टिंग। 4 न्यूटन किसके ऊपर है? 5 kg के ऊपर। 4 न्यूटन 3 kg के ऊपर नहीं है। 3 kg के ऊपर कौन सी लगेगी? ओनली नॉर्मल रिएक्शन विच इज़ ड्यू टू 5 kg। तो ध्यान रखना इसको, उस चीज़ का भी, कि जो फोर्स लगेगी दैट इज एक्सर्टिंग ऑन 5 kg बॉडी। तो 5 kg की बॉडी के ऊपर ये फोर्स लगेगी, 3 kg के ऊपर सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। सो दिस इज द 3 kg। नाउ दिस इज द FPD, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg। जिनको फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में नहीं पता, दे हैव टू विजिट द चैनल अर्लियर। तो एक बार चैनल को पहले विजिट करें और समझने की कोशिश करें। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्री बॉडी डायग्राम। तो दिस मीन्स n इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो n इज इक्वल टू 3a। बच्चे दोनों को ऐड करते हैं एक बार, दिस इक्वेशन एज वेल एज दिस इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दें। n विल गेट कैंसल्ड आउट।
n and n will get cancelled out. 4 is equal to 8a. 4 is equal to 8a. So acceleration is equal to 4 by 8. So acceleration of the system comes out to be 4 by 8, that is equal to 1 by 2, that is equal to 0.5. So this will be the answer. 0.5 meter per second square will be the answer for this question. You can note down the solution please. और बच्चे अगर यहाँ पे मैं नॉर्मल रिएक्शन की बात करूँ जो अपवर्ड डाउनवर्ड है, सो दिस विल बी द अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज डाउनवर्ड वेट, तो दीज टू विल कैंसल आउट, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा. हेयर ऑल्सो दिस विल बी द नॉर्मल रिएक्शन ऑन 5 kg बॉडी एंड दिस विल बी द वेट, तो दीज टू विल ऑल्सो कैंसल आउट, तो इसलिए मैं यहाँ पे इनको नहीं लिख रहा. अदरवाइज मुझे लिखने चाहिए बट मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे लग रहा है ये कैंसिल हो रहे हैं. ओके, body is not moving upward downward, that's why I am taking them constant. So I hope question is clear. Answer is 0.5 meter per second square. So for this question I hope now answer is clear. Now we have to move to the question number 3. Okay, now the question is force exerted on mass 3 kg. तो फोर्स पूछा है कितनी लगेगी मास 3 kg के ऊपर. सेम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. सो फोर्स ऑन मास 3 kg, आई थिंक अभी आपने अगर यहाँ पे मैं बनाऊँ इसको, ओके ओके, सो कैन यू नाउ यू कैन सी फोर्स ऑन 3 kg मास, फोर्स ऑन द 3 kg मास, वेट फॉर 1 minute फ्रेंड्स, कंट्रोल दैट. फोर्स ऑन द 3 kg मास विल बी दिस वन, दैट इज n. सो नॉर्मल रिएक्शन बाय 5 kg ऑन 3 kg. सो नॉर्मल n इज इक्वल टू 3a. सो a की वैल्यू पुट कर दो, 3 इंटू n इज इक्वल टू 3 इंटू 1 बाई 2. सो 3 by 2 विल बी द 3 by 2 न्यूटन विल बी द फोर्स दैट इज exerted on the 3 kg मास. सो 3 by 2 न्यूटन. एक बार चेक कर ले वहीं पे जाके आंसर. यस, सो आंसर इज अवेलेबल 1.5 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी. सो क्वेश्चन क्या था बच्चे, इन द फॉर द सेम क्वेश्चन व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन मास 3 kg. सो 3 kg के ऊपर फोर्स पूछी थी तो हमने कैलकुलेट की मास इनटू एक्सेलरेशन. तो एक बार चेक कर लो यहाँ पे, एक्सेलरेशन वी हैव कैलकुलेटेड फॉर द अर्लियर क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट फाइंडिंग द एक्सेलरेशन वी हैव कैलकुलेटेड द नॉर्मल रिएक्शन बिकॉज वी हैव टू फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन. तो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम था, इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रही थी दैट इज टूवर्ड्स right direction and that force n is equal to 3a and a is equal to 1 by 2. So we have calculated n is equal to 3 into 1 by 2. So 3 by 2 that is equal to half is the answer, 1.5 Newton. So for the question number 4, that is what is the force exerted on 3 kg mass. So force exerted on 3 kg mass is 1.5 Newton. 1.5 Newton. C option will be the right answer for this question. Now students, we have to see the next question. The next question is on screen. 5th question, 6th question, 7th question and 8th question. Students, these questions we will discuss in the next video. These 4 questions we will discuss in the next video. तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी कंपोनेंट डिवाइड कैसे होंगे वो भी आपको बताऊंगा, बट यू कैन ट्राई एट यूर एंड अगर आप करना चाहो. दिस क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 एंड फर्दर क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. तो आई विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस लेटर ऑन. मैं थोड़ा लेट डिस्कस करूँगा, अभी डिस्कस मेरा नहीं है प्लान. आई विल डिस्कस these क्वेश्चंस आफ्टर टुमारो और अ डे आफ्टर टुमारो. सो ड्यूरिंग दैट आई हैव टू प्रिपेयर द लेक्चर फॉर द 12th क्लास ऑल्सो. सो वी हैव डन 4 क्वेश्चंस टुडे that are block problems and the answer for the first question answer was,
First question answer was option number D, 2 meter per second square. You can see the solution. If any problem is there, then you can drop a message to me. For the second question, we have to find the tension T2, that is between the mass M1 and M2. So we have to find this tension value, So for this question, our answer was 10. B option will be the answer for this question. B option, 10 Newton. For the next question, we have to find the acceleration of mass 3 kg. So acceleration दोनों masses का same होगा. So acceleration was 0.5 meter per second square. So 0.5 meter per second square was the acceleration that we have calculated. And for the fourth question, we have to find the force that is exerted on the mass 3 kg. तो उसने हमने calculate की n equal to 3a. So a की value 1/2. The answer comes out to be 1.5 Newton. So I think 4 questions we have done in this question video. 4 questions we have done. If you have any doubts, then you can contact me. Okay, कहीं भी डाउट लगता है पूछो बच्चे. And thank you so much for watching this video. Have a nice day ahead. Take care. Bye bye. Take care.